السلام علیکم. ایکچولی میں دعوت دینا چاہوں گی ڈاکٹر جاوید اقبال کو, جو کہ جنہوں نے اجمل خان میڈیا کالج اے ایم یو سے اپنا بیئرس کیا ہے اور ابھی یہاں پر ایز اے ٹیچر اسکالر سیکنڈ ایئر ڈپارٹمنٹ آف کیا ہے. السلام علیکم. بہت شکریہ احمد, آپ نے اس حسن خوبی سے اس پروگرام کو انشاءاللہ آرگنائز کر رہی ہے اور بہت ہی آسانی سے وہ ظاہر سی بات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. دراصل اس سے پہلے کہ میں یہ لیکچر شروع کروں, نو یور کلیات, اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں سے مخاطب تو ہو ہی گیا کہ آپ کو مدارس سے اصل میں یہ نو یور کلیات جو ٹاپک ہے, اس میں کلیات سے ریلیٹڈ اور جو سبجیکٹس ہیں اور جو سلیبس آپ کا ہے وہ سلیبس جو کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے دیا گیا ہے نا, تو اس کا ڈسکشن اس میں ہوگا. ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا پڑھنا ہے یہ جاننا. تو میں نے سوچا تھا کہ کچھ اور اس میں تھوڑی محنت کر لی جائے اور اردو اور عربک سے, کیونکہ خاص کے جو سائنس سائڈ سے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں تھوڑے ان کی اردو جو ہے کمزور ہوتی ہے. تو تھوڑا تھوڑا میں نے کوشش کیا ہے کہ اس کو جو ہے کچھ گرامر اور کچھ جو اردو کے سلیبس ہیں اس کو تھوڑا ڈسکس کیا ہے. لیکن جب آپ میں یہاں پہ تھوڑا سا مجھے چینج کرنا پڑے گا یا چینج کچھ ڈسکس کریں گے ہم لوگ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بھائی آپ سے اچھی اردو تو میری بھی نہیں ہوگی, مدارس سے ہیں آپ, میں سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں. دوسری بات یہ کہ کچھ عربک سائنس میں, تو عربک میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگ زیادہ بہتر ہوں گے, عربک سمجھ میں کم ہے معاملے میں. وہ پھر بھی دیکھتے ہیں تو میں نے یاد کیا ہے اس کو آپ کو کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. یہ اردو ہے اور اردو کے بارے میں داد دہلوی نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داد, سارے جہاں میں ڈوب ہماری زبان تھی. تو اردو جو ہے وہ صرف ایک کہیے کہ زبان نہیں ہے بلکہ اردو ایک تہذیب. اب اس کو میں چاہوں گا کہ کیسے اس کو سمجھا جائے. تو ظاہر سی بات ہے آپ خود بھی اردو والے لوگ, تو جیسے میں یہ کہوں کہ صاحب کسی کو کہ چائے لاؤ یا چائے لائی, تو اس کا جو انداز ہوگا وہ کیا, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر بڑا ہی کوئی بدتمیز ہے تو وہ بھی اگر بولے گا تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ ابے ہو چائے, یہ کر سکتا ہے. اردو کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر اس کو بہت خوبی کہا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب چلو چائے لاؤ. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چائے لائیے, مطلب ہے چائے لائیے. اور بہت پیار سے کہا جا سکتا ہے کہ چائے لائیے. ایک ورڈ کیا تھا کہ چائے لانے کی بات ہو رہی تھی اور اس میں یہ کہا گیا, اس میں 5 سینٹینسز آئے. تو یہ جو کہنے کا جو انداز ہے یہ شاید ابھی جو ڈومیننسی ہے انگلش کی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں انگلش کے خلاف ہوں یا پھر انگلش کی برائی, لیکن زبان کی جب آپ کہنے گے کہ کمپیریزن کریں گے, کمپیریٹیو اسٹڈی جب ہوتی ہے تو اس میں آپ پائیں گے کہ سب سے کمزور جو لینگویج ہے وہ انگلش. آپ کو اس سے اندازہ ہوگا. چائے لائیے کے لیے کیا کہیں گے آپ انگلش میں, اس کے علاوہ کچھ پلیز کہیں گے تو پلیز کے لیے اردو میں بہت سارے ہیں. اگر پلیز لگاتے ہیں
मैंने मेहरबानी करके भी कहा इसमें। तो ये जो है उसके लिए फिर से 4-5 अल्फाज हो गया है, आप देखेंगे। तो ये एक खूबसूरती है। मैं जब यहाँ पे जेनेटिक्स पढ़ा करता था, स्टूडेंट MBBS की तैयारी करता था, तो उस जमाने में रमला ढोले एक टीचर थे, बहुत ज्यादा याद तो नहीं आ रहा है, कंसेप्ट सीरीज से अप्लाई करते थे, पढ़ाया करते थे, जिस पढ़ाते थे वो जेनेटिक्स। उन्होंने कहा था सब ने सामने कि अरे देखो, वो बावजूद बहुत बोलते उर्दू के बड़े, और हालांकि वो आर्मी से रिटायर्ड थे और जेनेटिक्स पढ़ाते थे। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी के लिए जैसे एक रन, तो एक वर्ड के लिए आपको कितनी रन में दौड़ना है। रन में ये समझते हैं जो क्रिकेट में जो रन होता है उससे भी काउंट कीजिएगा, और रन में ये भी काउंट होगा कि आप इनाम भर, रन में भागना भी हो गया, रनिंग नोज भी कहते हैं, और रन कई, यानी एक वर्ड का इस्तेमाल कई मानों में हो रहा है। लेकिन उर्दू के साथ उल्टा है। उर्दू के साथ यह है कि भागने के लिए, दौड़ने के लिए, नाक कहने के लिए कम से कम 2-2, 4-4 अल्फाज। उसी तरह से अरबिक में आप देखेंगे तो उस जमाने में जब हम लोगों की इतनी फहम नहीं थी उर्दू की और अरबिक की। उर्दू की वाकफियत घर से थोड़ा मुझे मिला हुआ है, मेरे वाले साहब शायर हैं अदब नवाज हैं, तो वो रसायन जो है पढ़ के जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में 6-7 रसायन आती मंथली, कुछ हम भी पढ़ लेते थे, शायद उसी में MBBS में वो ज्यादा ही पढ़ लेते थे। तो जो आपका जो मशगला है तो उसको थोड़ा कम रहना चाहिए, और जो कैरियर है, जो टारगेट है, उसको फोकस ज्यादा करना चाहिए। है तो उन्होंने जो बात कही वो अभी तक याद है। जब आप इस समय जो बात कही थी, बात की जिंदगी में अभी तक जो एक्सपीरियंस है हमारा, वो यही कहता है कि आपकी जो जबान है, ब्रेकिंग स्टडी आप करेंगे, अरबिक से ज्यादा जबान आपको नहीं जानते हो, मदारिस के तलबा है आप लोगों का, तो दायरा और बड़ा है। ये चीज है। उसी में कुछ और अशार मैंने कोट किए थोड़ा इंटरेस्टिंग इसको करने के लिए, नहीं खेल है ना बिहारों से कह दो कि आती है उर्दू जबान आते रहे। तो ये जो शेर था कि उर्दू इतना आसान नहीं है, मैंने पिछले साल भी इस पे प्रोग्राम दिया था, उसमें नॉन हिंदी लोग, ये नॉन उर्दू जो है स्टूडेंट्स लगता है कि 7-8, तो लोगों को जाहिर सी बात उर्दू नहीं जानते, उनके लिए बहुत सारी चीजें थी। एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि अब्बास ताबिश साहब पाकिस्तान के शायर थे नामवर, उन्होंने कहा कि साहब चांद चेहरे मुझे अच्छे तो बहुत लगते हैं, बट इश्क मैं उससे करूंगा जिसे उर्दू आए। तो ये जो है उर्दू का हवाला है। इसके अलावा भी बहुत, अब आते हैं तो जो है क्या है बाटे के क्या पढ़ना है आपको, तो ये है कि हुरूफ तहजीब है, हुरूफ की मुफरद और मुरक्कब हैं, शक्लें हैं, दरमियानी और आखिरी शक्लें, एकारी शक्लें, हम सूरत हुरूफ जो हैं वो मसौते और मुस्मते जो पढ़ते हैं वो हैं, हुरूफ की अक़साम हैं, रब्त, तफसीर, ये वाव और मुअद्दिला जो पढ़ते हैं, वाव अतफ, खड़ा अलिफ, अलिफ मक़सूरा, अलिफ ममदूदा, अलिफ वस्ल, इराब हो गए, तनवीन हो गए, तशदीद, मद हरफ, और ये सारी चीजें हर्फ, शर्त, हर्फ इस्तिस्ना। इन चीजों से जाहिर सी बात है कि आपका वास्ता पढ़ने वाला है आगे सिलेबस में, इसे पढ़ना है, और एग्जाम्स में जाहिर सी बात है कि इनसे सवाल पूछेगा, इसलिए जरूरी है जानना। एक उर्दू का जानना, मुझे तो ये लगता है कि उर्दू सिर्फ इसलिए ना पढ़ी जाए कि हमें सीखना, आप लोग तो उर्दूदान है, तो अब जब पढ़ना ही है तो अच्छे से पढ़ा जाए कि भाई उर्दू इतनी आ जाए उसमें थोड़ा मजा आने लगे, इंटरेस्ट पैदा है ना, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। ये और पिताजी का है, तो सिर्फ तो वापिस ही हैं आप लोग, है ना। ये कुछ लिहजा किसी जबान के, हिजा की बात है कि लिहजा किसी जबान के तहजीब को अलग अलग करके, जो हिजा पढ़ते हैं ना, हिजा ही बोलते हैं ना उसे, हम लोग हिजे या हिजा ये बोलते हैं कि हिजे करके पढ़ो, तो हिजा किसी जबान के हुरूफ तहजीब को अलग अलग करके इमला और हिजों की साथ कायम है ना। हुरूफ जानते ही आप, हुरूफ अब्जद है, हर जबान की तहरीरें, अलामात और निशानात पर मुश्तमिल,
یہ علامات اور نشانات حذف کرنا ہے، جیسے الف با تا تا، یہ سارے جو ہیں وہ حروف ہیں اور مجموعے کو آبجیکٹ کہتے ہیں، ہے نا۔ حرف اور حروف درجی کی بات کریں گے تو اردو میں حروف کی دو قسمیں، اصل میں کیا ہے کہ کلیات کے علاوہ امور طبیعہ کے علاوہ دو تین اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں سلیبس، وہ اسی ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پڑھایا کریں، وہیں کے اساتذہ کو پڑھاتے ہیں۔ اس میں عربی بھی ہے، منطق فلسفہ بھی آئے گا اور تھوڑا سا پارٹ سائیکالوجی کا بھی، جو یہ انہوں نے ابھی میں ایڈ کیا ہے، مجھے نہیں تھا۔ یہ چیزیں تو پہلے سے تھی۔ اردو میں حروف کی دو قسمیں ہیں، ایک مفرد حروف، یہ حروف صرف ایک حرف پر مشتمل ہوتے ہیں جیسے الف با تا تا، اس طرح سے، اور مرکب حروف مل کر ایک حرف بناتے ہیں، آ بھا تا تھا ٹھا، اس طرح سے، تو یہ مرکب کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ لفظ جو ہے ان حروف سے مل کے جو لفظ کلمہ، مادہ، اشتاق، دو حرفی لفظ، حرفی لفظ، چہار حرفی لفظ، اس میں اور کیا قسم، یہ پوری جو اردو کے گرامر ہے نا، یہ آپ کو پڑھنا ہے، فعل اور اس کی حالتیں، ضمیر اور اس کی حالتیں، صفت اور اس کی قسم، اور قواعد۔ جب قواعد کی بات کریں گے تو مطلب پیچیدہ لفظ، مرکب الفاظ، یہ سارے جو ہیں آپ کو پڑھنا ہے، ربطی مرکبات، توصیفی مرکبات، اعدادی، یہ سب جو ہے تابع محمل وغیرہ، یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ لفظ کی دو اقسام ہیں، آگے بتائیں کہ یہ پڑھانے کی مطلب پڑھنے کی یا پھر یہ کورس میں ایڈ کرنے کی اس کی ضرورت کیوں ہے، آخر اس کی اہمیت کیا ہے، یہ آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ لفظ کی دو اقسام ہیں، کلمہ ایسے الفاظ جن کے اپنے معنی ہوں اور سننے والے کی سمجھ میں آ جائیں، جیسے سیاہ، سفید، اس طرح کی جو ہیں، اور محمل ہوتے ہیں ایسے الفاظ جن کے اپنے کچھ معنی نہ ہوں، لیکن جب یہ الفاظ کلمہ سے ملے تو کچھ معنی بناتے ہیں، تو جیسے پانی وانی، بات چیت، جھوٹ موٹ، اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کو محمل بولتے ہیں۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ بناوٹ کے لحاظ سے فعل کے درجے چار اقسام ہیں، فعل لازم، فعل متعدی، فعل مثبت اور فعل۔ اسم کی اقسام کی بات کریں گے تو بلحاظ معنی، استعمال، یہ سب میرے خیال سے آپ لوگ کا پڑھا ہوا اردو میں آپ جی، اچھا جی، تو آپ کے لیے یہ جو ہے تو سمجھیے اور پڑھیے، یہ ساری چیزیں آگے پڑھنی ہے، آپ سمجھنا ہے۔ اسم کی اقسام بلحاظ معنی، استعمال، معنی اور استعمال کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں۔ اسم نون کو کہتے ہیں، تو آپ نے نون پڑھا، بس وہی اسم، تو اس میں معرفہ اور کوئی اس میں خاص کو کرتے ہیں آپ، اور ایک کسی جگہ یا چیز کا خاص نام کو اس میں معرفہ کہیں گے، اور اس میں نکرہ جو ہوتا ہے اس میں عام ہے، کامن نام کہلاتا ہے۔ کسی شخص، جگہ یا چیز کا عام نام اس میں نکرہ کہلاتا ہے، جیسے گھر ہے، شہر ہے، کتاب ہے، مرد ہے، لڑکی وغیرہ، یہ سب اس میں ہے۔ اس میں معرفہ کی اقسام ہے، اس میں معرفہ کی چار اقسام ہیں، اس میں دیکھیے، اس میں علم ہے، وہ اس میں جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے بولا جائے، جیسے پٹنہ، صحیح وغیرہ جو نام ہے اس میں علم رہیں گے۔ اس میں ضمیر وہ ہے، وہ اس میں جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جائے، جیسے اس، تمہارا، میرا، ہم وغیرہ، وہ سے اس میں ضمیر بولے۔ اس میں اشارہ، وہ اس میں جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، مثلاً یہ کتاب، وہ کبوتر، یہاں یہ اور وہ اسم اشارہ ہے۔ اور اس میں موصول جو ہے وہ اس میں ہے جو دو جملوں کو ملاتا ہے، جن سے مطلب سمجھ آتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے اس میں معرفہ کے اقسام ہیں۔ اس میں اشارہ کی اقسام بھی ہے، اس میں اشارہ کے دو اقسام مختلف ہیں، اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید۔ اس میں اشارہ قریب میں وہ اس میں اشارہ جو قریب کی کسی چیز، جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرے، یہ اس کی، تو اسے کہیں گے کہ یہ اس میں اشارہ قریب ہے۔ اور اس میں اشارہ بعید کی بات کریں گے تو وہ اس جو دور کی کسی چیز، جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرے، وہ اس ان، تو اسے کہیں گے کہ یہ اس میں اشارہ بعید۔ اس میں مشار الیہ ہے، جس شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ ہو اسے مشار۔ اصل میں یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے سسٹم میں پوچھی جاتی ہیں، دیکھنا میں ہم لوگ تو تھوڑی بہت وہ رکھتے ہیں دیکھ بھال میں، تو صاحب یہ بچے پوچھ لیتے ہیں تو ہمیں خود نہیں آتا، بتائیں کیا، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ کچھ
हालांकि बताने की ये बात तो होती नहीं है, लेकिन कभी कुछ मतलब ही पूछ लिया तो खुद ही नहीं आता। तो आप लोग वाकिफ हैं और इसको समझें। मिसाल है इस सब जगह या चीज की तरफ इशारा हो उसे मिसाल कहते हैं। और मिसाल अगरचा इसमें नकरा होता है मगर इसमें इशारा की वजह से इसमें मार्फा बन जाता है। इसमें मौकूल की बात की जाए तो वो कि जब तक उसके साथ कोई जुमला ना मिलाया जाए मतलब समझ नहीं आता। मसलन जो कुछ जौन सा जितनी जैसा वगैरह, ये जो है मिसालें हैं इसमें मौकूल। इसमें नोट है कि इसमें मौकूल वाले जुमले 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मसलन जैसा करोगे वैसा करोगे, है ना। इस जुमले में जैसा इसमें मौकूल है और करोगे ये क्या है? दूसरे पे चले गए। इसके लिए थोड़ा एडजस्ट करिए। नहीं हो पाएगा। छोटा कर दीजिए। इसमें ज़मीर की अक़साम की बात करें, जिस इसम की जगह ज़मीर इस्तेमाल किया जाए प्रोनाउन को ज़मीर बोलते हैं। तो जिस इसम की जगह ज़मीर इस्तेमाल किया जाए उसे मुरज्जा कहते हैं। मसलन हैदर अच्छा आदमी है, वो हमेशा सच बोलता है। इस जुमले में हैदर मुरज्जा और वो ज़मीर है ना। इस ज़मीर की दर्ज 7 अक़साम है। ज़मीर शख़्सी वो ज़मीर जो तसफ़्फ़ुस के लिए बोली जाती है। तसफ़्फ़ुस किसको बोलते हैं? बारे में बोला उसी पहचान मतलब वही वो ज़मीर जो तसफ़्फ़ुस के लिए बोली जाए उसकी 3 सूरतें हैं। एक तो ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर या मुखातिब, और तीसरा ज़मीर गायब। तो ज़मीर मुतकल्लिम जो ज़मीर बोलने वाला अपने लिए इस्तेमाल करे, मसलन मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें वगैरह, वो ज़मीर मुतकल्लिम है। और ज़मीर हाजिर या मुखातिब जो ज़मीर मुखातिब या सामने मौजूद शख्स के लिए इस्तेमाल की जाए, मसलन तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हें वगैरह। और ज़मीर गायब क्या है? वो ज़मीर जो गायब या गैर मौजूद शख्स के बारे में इस्तेमाल हो, मसलन वो, उस, इन, उन्हें, उन्हों वगैरह। तो ये जो कहलाता है ये क्या कहलाता है? ज़मीर गायब। और ज़मीर इशारा जो है, जो ज़मीर किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा करे, ये वो, यही, वही, इसी वगैरह, तो ये आपका ज़मीर इशारा है। तो इस तरह से ये सारे जो ग्रामर है इसको कुछ लेने की कोशिश किया है हमने, जिसे फेल की अक़साम को बताया है ना। ये सब आगे आपको जाहिर सी बात है पढ़ाई जाएंगे, ये सिलेबस है आपका। फेल की अक़साम वाले हाथ मानी फेल वर्ब को कहते हैं, है ना। वर्ब है जिसमें आपके लिए। तो फेल लाजिम मानी के लिहाज से फेल की किस्में दर्ज हैं। फेल लाजिम है, फेल मुतअद्दी है और फेल नाक़िस है ना। और फिर इसके जाहिर सी बात है कि जो डिफिनीशन है फेल लाजिम का, वो फेल है जिसका असर फकत फाइल तक महदूद हो। फाइल किसको बोलेंगे? करने, है ना। महदूद ना हो या जो सिर्फ फाइल से पूरा मतलब आगे कर दे, मसलन अली आया, मैं गया, सलमा मुस्कुराती है वगैरह, तो ये फेल लाजिम का क्या है? मिसालें हैं। और फेल मुतअद्दी जो है वो फेल जो फाइल के साथ मफऊल का भी होता है। मफऊल किसको बोलेंगे? तो बिना मफऊल मतलब पूरा समझ ना आता हो, मसलन अली अनार खाता है, उसने चाय पी, वो अखबार पढ़ने गए, हम मैच देखने गए, ये सारी चीजें फेल मुतअद्दी। फेल नाक़िस वो फेल जिसमें किसी फेल का सिर्फ होना पाया जाता है। ये फेल फाइल के बजाय मुब्तदा और खबर पर मुश्तमिल होता है। मसलन खालिद चोर है, मैं बीमार, वो खूबसूरत थी, है ना, खबर है ना इसमें, तो इसे कहते हैं फेल नाक़िस। और फेल मारूफ जो है जिस फेल का फाइल काम करने वाला मालूम हो, उसे
उससे पहले मालूम करते हैं। मसलन मैं आया, सलमा रोई, वो मैच खेलेंगे, ये पहले मालूम। उर्दू के कवायद आप लोगों को नहीं पढ़ाई जाती मदारिस में, सिर्फ अरबी पढ़ाई जाती। अलामात तलफ़्फ़ुज़, आराब या हरकत सिकनात, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए उर्दू में हरूफ पर मखसूस अलामात इस्तेमाल की जाती हैं। उन अलामतों को एराब कहा जाता है। एराब लगाने से हरूफ दो हालतों में आ जाते हैं, ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहा जाता है, इसको तनवीन भी बोलते हैं ना, वो अरबी में, उर्दू में तो नहीं होता। दो ज़बर दो पेश, इसको तनवीन। मुतहर्रिक की बात कीजिए तो जब हरूफ पर ज़बर, ज़ेर या पेश आए तो ये अपनी आवाज देते हैं और ऐसे हरूफ को मुतहर्रिक करते हैं। और साथ ही जब हर्फ पर कोई हरकत ज़ेर, ज़बर, पेश ना हो बल्कि जज़म हो तो ऐसा हर्फ साकिन कहलाता है। आराब ये है, ज़बर ये तिरछी लकीर हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। अरबी में ज़बर को फतह कहते हैं, इसीलिए जिस हर्फ पर ज़बर आए उसे मफ्तूह कहते हैं। जैसे अकबर, दर, बरतरफ, ये इसमें जो ज़बर आया है तो वो मफ्तूह है ना। उसी तरह से ज़ेर की बात की जाए तो ये तिरछी लकीर हर्फ के नीचे लगाई जाती है। तो अरबी में ज़ेर को क्या कहते हैं? पेश की बात की जाए, ये अलामत हर्फ के ऊपर लगती है। अरबी में पेश को जम्मा करते हैं या जुम्मा करते हैं, क्या करते हैं? जम्मा करते हैं। और इसीलिए जिस हर्फ पर आए उसे मफ़हूम कहते हैं, मसलन पूर्व, उर्दू, जोर वगैरह। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर जो बातिल है ना, ये अलामत हर्फ के ऊपर लगती है और दो ज़बर के बराबर पढ़ी जाती है, जैसे इलाही, मूसा, ईसा वगैरह। खड़ी ज़ेर की बात की जाए तो ये अलामत हर्फ के नीचे लगती है और दो ज़ेर के बराबर आवाज देती है, जैसे आला और बहीना वगैरह। आलही होगा, आलही है। जज़म या सुकून की बात की जाए तो ये अलामत हर्फ के सुकून या ठहराव को जाहिर करती है, हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। इस अलामत वाला हर्फ साकिन होता है, जैसे बर, इम्कान वगैरह। और तनवीन दो दो ज़बर या ज़ेर या पेश तनवीन कहलाते हैं और नून की आवाज देते हैं, जैसे फौरन, असलन, मसलन वगैरह। तशदीद की बात की जाए तो ये अलामत हर्फ के ऊपर लगती है। इस अलामत वाले हर्फ को दो दफा पढ़ाया जाता है। इसमें इसे क्या शद भी कहते हैं। मुशद्दद होना चाहिए तो शद से मुशद्दद होगा। इस अलामत वाले हर्फ ये रमूज और औकाफ है कि कहाँ ठहरा जाए और कहाँ जो है आपको मिला के पढ़ना है। कलाम या जुमलों को एक दूसरे से अलग समझने और जुदा करने के लिए जो अलामात इस्तेमाल की जाती है उन्हें रमूज, औकाफ कहते हैं। जुमले के दुरुस्त मतलब के लिए उनका जानना और इस्तेमाल करना अशद जरूरी होता है। एक अलामत जिसे वक्फा कहते हैं उसका इस्तेमाल देखिए। ठहरो मत जाओ के दो मतलब लिए जा सकते हैं। ठहरो मत जाओ यानी कि ठहरो मत जाओ, जाना नहीं। और एक हुआ कि और ठहरो मत जाओ, एक अलामत आगे पीछे करने से पूरा मतलब तब्दील हो जाता है। सकता उसकी अलामत है, एक जुमले के अल्फाज या मुरक्कबात के दरमियान इस्तेमाल होता है, इस पर थोड़ा सा ठहरना चाहिए। वक्फा इसकी अलामत, वो अलामत देख ही रहे हैं है ना। वक्फा की मुफरद जुमला के इख्तिताम पर यह अलामत लगाई जाती है। सकता की निस्बत यहाँ ज्यादा है। वक्फ कामिल इसकी अलामत ये है, इस पर ठहरना तो डैश किया हुआ है। तो जो हम लोग करते हैं उसमें फुल स्टॉप इंग्लिश में, तो वो वक्फ कामिल नहीं हुआ। अलामत हज़फ इसकी अलामत ये है, वो जो लाइन देख रहे हैं ना, अगर इबादत में किसी चीज का जिक्र ना करना हो तो उस अलामत को इस्तेमाल करते हैं। अलामत इस्तिफ़हाम कहते हैं कि इसकी अलामत यानी क्वेश्चन मार्क, अलामत इस्तिफ़हाम इसकी अलामत है। ये अलामत सवालिया जुमले के आखिर में आती है।
علامت تعجب یا ندا، اس کی علامت ہے کسی تعجب یا حیرانگی یا جذبات کے اظہار کے بعد یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ علامت تفصیلہ، اس کی نشانی ہے کسی جملے کے مفہوم کو واضح کرنا ہو تو یہ علامت استعمال ہوتی ہے، مثلاً یہ وقت جو گزر رہا ہے اسے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ علامت تک، اس کی نشانی ہے عبارت میں کسی لفظ کے چھوٹ جانے پر استعمال کی جائے۔ اور علامت زید، اس کی نشانی ہے اور زید کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ علامت اقتباس، یہ اس کی نشانی ہے اقتباس کی دونوں طرف سے کوما جو انورٹر یہ ہے کسی عبارت کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ یہ پوری گرامر جو آپ کو آگے جو پڑھنا ہے اس کے کچھ مطلب کہیے کہ ہم نے پوائنٹس لیے ہیں۔ مستقل الفاظ کی قسمیں ہیں، اس میں صفت ہے، ضمیر ہے، فعل، تمیز، اسم کی اقسام ہیں، اس میں خاص ہے، اس میں عام ہے، اس میں عام کی اقسام، اس میں کیفیت، اس میں جمع، اس میں جمع، اس میں ظرف، اس میں عالم۔ اس سے پہلے اردو کی نسبت سے کسی نے آگے بات کی ہے، یہ بتائی گئی ہے کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، میں بتا رہا ہوں سرسری طور سے۔ اور یہ ضمیر کی اقسام، استفہامیہ، اشارہ، تنکیر، یہ آپ کے سلیبس میں یہ ساری چیزیں فعل کے صیغے، غائب، حاضر، متکلم ہے نا۔ افعال ماضی کی اقسام، ماضی مطلق، ماضی ناتمام، ماضی شرطیہ، ماضی تمنائی اور ماضی احتمال، یہ ساری چیزیں آپ کو اردو میں پڑھنی ہیں۔ میرے خیال سے یہ فعل کی حالتیں ہیں۔ اب آئیے، یہ حصہ جو ہوا وہ گرامر کا حصہ تھا نا، فعل کی حالتیں، اور اس کے بعد جو ہے علامات، اوقات یا وقفات، سکتہ، رابطہ، تفصیلات، یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھنی۔ یہ ایک حصہ جو گرامر کا پورشن جو ابھی ہم نے بتایا ہے، یہ گرامر کا پورشن ہے، اردو گرامر، جس سے ہم لوگ جس کو ڈسکس کر رہے تھے۔ اب جو ہے نظم اور نثر کے چند منتخب ابواب بھی پڑھنے ہیں آپ کو، اس کے طرف اب ادب کی بات کی جائے تو اس میں یہ غزل ہے، میر صاحب کی نام تو سنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے، ہے نا۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ ندوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل کو آخر کام تمام، ہے نا۔ یہ ایک غزل آپ کو پڑھنا ہے میر صاحب کا۔ اس میں ایک شعر تھا کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے، کیا تھا، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو تو ابد بدنام۔ یہ جو شعر ہے اس کا مطلب میں نے جب والد صاحب سنے تھے بہت پہلے، تو یہ شعر واقعی یہ کیجیے گا، آپ کو سمجھیے گا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس کا سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو تو بس بدنام۔ کام تو آپ کر رہے ہیں، کام تو سارا آپ کا ہے، ساری دنیا تو آپ چلا رہے ہو، اور کچھ بات ہوتی ہے تو سارا کیا ایگزامینیشن ہمارا ہونا ہے، پوچھ تاچھ سے ہونی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک شعر اس میں مجھے یاد ہے کہ میٹرک میں پڑھا تھا، ابھی تک یاد ہے۔ وہی آپ کا ایک غزل لکھی پڑھنی ہے آپ کو اسد اللہ خان غالب صاحب کی، دل نادان مجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دعوت ہے نا، بہت مشہور غزل ہے غالب کا۔ جو آپ لوگوں کو مدارس سے ہیں تو بتائیں ان کا پہلا لقب کیا ٹائٹل؟ تخلص کو بولتے ہیں، ان کا تخلص نوشاد ہے، اور قصد تو تھا ہی، اور غالب نوشا جب وہ آگرہ میں تھے تب وہ نوشا لکھا کرتے۔ ترانہ بندی علامہ اقبال کی پڑھنا ہے آپ کو، نظم رات اسماعیل گرٹھی ہیں ان کی پڑھنی ہے، آوارہ اسرار الحق مجاز جنہوں نے ایلیوں کا ترانہ لکھا ہے یہ ہے۔ نثر میں آ جائیے تو نثر میں آپ کو پڑھنا ہے نظم کو کلام، یہ کیا ہے، اچھا نظم کو کلام موضوع کہا جاتا ہے، یعنی وہ نظم کے بارے میں میں نے نظم اور نثر کے بارے میں کہ نظم ہے کیا،
تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں نے بتایا آپ کہ نظم کو کلام موضوع کہا جاتا ہے، یعنی اس میں استعمال ہونے والے الفاظ محاورات یا تراکیب و اصطلاحات موضوع طریقے سے کسی خاص ساقی یا آہنگ میں ڈھلے ڈھلائے ہوتے ہیں، جبکہ نثر میں بھی الفاظ معنویت کے حامل تو ہوتے ہیں لیکن وہ کسی خاص وزن، آہنگ یا وزن کے پابند نہیں۔ نظم کو ایک چیز اور ہے، جیسے نظم میں اگر بات کی جائے اس میں غزل ہے، رباعی ہے، مثنوی ہے، یہ ساری چیزیں آئیں گی، لیکن اس سب میں الگ الگ کچھ فرق ہے۔ جب آگے آپ پڑھیں گے تو بات سمجھیں گے۔ نظم میں جو ہے وہ ایک تو آزاد نظم بھی ہوتی ہے اور ایک نظم وہ ہوتی ہے جس میں بر کا پابندی ہوتی ہے، اس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے۔ بقیہ جو ہے ان چیزوں میں جو آزاد نظم ہے اس میں اس کی پابندی نہیں ہوتی۔ نظم اور غزل میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ نظم جو ہے کسی ایک ٹاپک پہ کہ ہمیں چلو یہ کالج ہمارا ہے، اس پہ ایک نظم میں نے لکھی تو اس میں ساری چیزیں یہاں کے اس کے تعلق سے باتیں، لیکن غزل میں یہ چیز نہیں ہے۔ غزل میں یہ ہے کہ ایک شعر آپ کا ہمارے کالج کے تعلق سے ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا شعر ہمارے جو شاعر کا محبوب ہے اس کے تعلق سے ہو سکتا ہے، تو یہ بالکل الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ہر شعر کا مطلب غزل میں الگ ہوگا اور قافیہ اور ردیف کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ ذرا سا وہ کیونکہ تھوڑا سا ڈرائنگ ہے، جو گرامر والا پورشن جو ہوتا ہے اس میں مزہ آئے گا آپ کو پڑھنے میں، لیکن اردو کی سمجھ یا پھر مجھے لگتا ہے کہ لٹریچر جو آپ کی تو بہتر ہے کہ یہ آپ کے لیے کہ اچھی کتابیں جو یونانی کی کتابیں جو ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ تراجم ہوئے ہیں واقف سے اردو میں ہوئے ہیں۔ آپ کی اردو اس لیے اچھی ہونی چاہیے تو یہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ ادب دونوں کی اردو لیکن الگ الگ ہو جاتی ہے، ایک طب کی اردو اور ایک ادب کی اردو، دونوں میں فرق۔ لیکن اس لیے اتنا کچھ پڑھایا جا رہا ہے کہ اس میں ڈالا گیا ہے کہ صاحب آپ اس قابل ہو جائیں کہ وہ جو مطلب خالص اردو جو ہے جو عربک سے اردو ٹرانسلیٹ میں تو سمجھ سکتے ہیں، اور کے جو موسٹلی جو حکیم ہوا کرتے تھے وہ ادیب ہوا کرتے تھے، ادب نواز ہوا کرتے تھے، تو ان کا وہ تراجم میں سا تو کئی بار تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ سر سے گزرتا ہی رہتا ہے، اکثر ہی، کئی بار نہیں اکثر ہی، ٹھیک ہے۔ اگر قانون پڑھیں گے آپ یا ذخیرہ خالد الہی پڑھیں گے، یہ کتابیں جب پڑھیں گے آپ جو تراجم ہے اردو کے دل کی بنیاد کلاسیکل بکس میں، تو آپ کو لگے گا یاد ہو تو تو اس کے لیے یہ آپ کو تیار کیا جائے، اصل مقصد یہ۔ اور عربک سے اگر واقف ہیں کہ بھائی عربک میں وہ کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں، جو کتابیں عربک میں کی ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ کے لیے، لیکن سب کے لیے یہ مشکل ہے، اس لیے ہم لوگ خود ہی عربک نہیں جانتے، نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری بات نثر کی بات آتی ہے تو نثر میں تو آپ لوگوں نے بہت کچھ پڑھا ہی ہوگا، کہانی ہیں، افسانے ہیں، ناول ہیں، یہ سارے نثر میں آتے ہیں۔ جو پروز اور پوئٹری جو انگلش میں کہی جاتی ہے وہ پروز کا پارٹ جو ہوا وہ نثر ہوا اور پوئٹری بالکل۔ آپ لوگوں نے اگر پڑھا تو نثر میں کسی ایک کتاب کا نام بتائیے اردو کی، کوئی ناول کا نام بتا دیں آپ ہمارے ساتھ، اور کس کا ہمارے ساتھ کس کا ترجمہ؟ ہاں انڈیا فریڈم جو ہے اس کی بھی اردو میں آئی ہے، وہ ترجمہ ہوا۔ اسی میں دیکھیے یہ کچھ جو ہے اسماعیل میٹھی صاحب کا جو ہے نظم بہت اچھا کرتے تھے، تو گیا دن ہوئی شام آئی رات، وہ جو ان کی نظم ہے جو پڑھنا ہے اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھنی ہے، خدا نے جو شعر بنائی میرا، تو یہ چیزیں آپ کو نظم اور نثر کے تعلق سے ہوئی۔ نثر میں کچھ غالب کے خطوط بڑے مزاحیہ انداز میں وہ بیان کرتے تھے صاحب، اگر آپ لوگ بتا سکتے ہوں تو بتائیے کہ کیا خاص بات تھی ان کے خطوط کی۔ میں نے میٹرک تک اردو پڑھی، اس میں خاص بات تو غالب تو خط لکھتے تھے، ہم لوگ تو خط لکھتے ہیں،
आप लोग ने सब खत लिखने का जमाना तो खत्म हो गया था, आप लोगों ने तो लिखा नहीं होगा, सब लोगों ने बहुत प्रश्न लिखी। आप लोगों ने लिखा जी उनका ये अंदाज होता था कि लगा था कि महबूब के सामने बैठा हुआ और इस बात जी, ये महबूब नहीं, जिसको कभी से भी आप महबूब देख रहे हैं तो महबूब तो रहा नहीं। हाँ, जो दोस्त है तो वो ये था कि वो इस तरह से खत लिखते थे कि यानी मेरी बातचीत हो रही, हमें यार तुम कहाँ से, हम तुम्हें याद कर रहे थे और तुम इतने याद आए कि मैंने ये इस तरह का सारा तो इसलिए गालिब का खत मीर मेहदी के नाम, ये मीर मेहदी उनके दोस्त हुआ करते थे, उनके नाम है नाजिम जहां हकीम आजम खान, मसीह मलिक हकीम अकबर खान हो गए, और मसीह मुल्क हकीम अकमल खान वर्जिश के तरीके और हिदायत पढ़ने हैं आपको, कुछ तिब्बी अफराद पढ़ने हैं ताकि उसकी समझ बढ़े तिब की, उसमें बुखार उखार का जिक्र हो, ब्लड प्रेशर वगैरह का जिक्र हो, है ना, तो तिब्बी अशार में ये सारी चीजें आएंगी। कुछ मर्सिया पढ़ने हैं आपको, हकीम महमूद खान साहब, अल्ताफ हुसैन अली के नज़में पढ़नी होंगी मेरे ख्याल से, और तिब का तारीखी की खाका कमालुद्दीन हमदानी साहब की पढ़नी है, किताब भी है सैयद अली रहमान की रसूम व आदाब, ये कहानी है तो पढ़नी है आपको। इस्लाही कहानियां सैयद अली रहमान ने बहुत लिखी हैं, सोशल जो समाज को सुधारने के लिए, इस्लाह के लिए, उसके लिए बहुत काम करता है। ईदगाह जो है प्रेमचंद की, आपने मुकदमे में पढ़ी होगी, बहुत ही जबरदस्त कहानी है इनकी, है ना, सब बच्चा बचपन में ही पढ़ी की कहानियां है। और क्या है, इससे हातिम ताई मीर अहमद दिहलवी की ये किताब है, ये सारी चीजें आपको मतलब कुल मिला के क्या है, काफी बड़ा सिलेबस है, ठीक है। ये उर्दू था, ये उर्दू, अभी अरबिक शुरू होगा ना। अरबिक में तो आप लोग जानते हो कि अरबिक में देखिए क्या है, नौ और कुलियात में अरबिक जो पोर्शन है, अरबिक में क्या क्या पढ़ना है, अरबिक अल्फाबेट, सोलर एंड लूनर लेटर्स, अरबिक वर्ड्स, वो सोलर और लूनर क्या कहते हैं, शमसी और कमरी लेटर्स, अरबिक वर्ड्स एंड नंबर। ये इंग्लिश में थोड़ा कर दिया है कि और भी जो लोग बताने से नहीं उनको ज्यादा समझ में, है ना। वर्ड एंड इट्स काइंड्स, नॉन, वर्ब एंड पार्टिकल्स, जाहिर सी बात है जो ग्रामर उर्दू की है और जो अरबी की है, दोनों कुछ कुछ मिलते हैं लेकिन अलग, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ नॉन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन लाइक a different noun and different noun, gender and number, compound word and its kind, incomplete workup। असल में क्या है, जो नॉन उर्दू वाले हैं वो घबराएंगे इस बात से, उर्दू बहुत आसान है, आप सीख जाइएगा, पढ़ने लगिएगा, लिखने लगिएगा, आपको आसान है, कुछ भी नहीं। वो कहानियां हैं, वो नज़में हैं, वो गज़लें हैं, तो कोई भी पढ़ सकता है, समझ सकता है, मुश्किल। Compound word and its kinds, incomplete workup, possessive compound, adjective compound, demonstrative compound, ये सारी पढ़नी है। ये थोड़ा सा फर्क, क्योंकि उर्दू में जो टा होता है वो नहीं होता है इसमें, जो चा होता है ये इसमें नहीं होता अरबी में, है ना। बकिया चीजें तो करीब करीब सारी वही है ना। तो थोड़ा से के बाद ये कलमा, इसमें जो कहते हैं कलमा सरिया है, मैंने कि इसको कहेंगे, इसमें भी इसमें नाउन नहीं होता है, अलग नहीं, फेल वर्ब को कहते हैं, और हर्फ जो है आपको सामने ली, अली, हाँ, इस तरह का, ठीक है। इसको जरा सा मैंने प्रेजेंटेशन के तौर पे इस तरह से ले लिया, ठीक है। और ये तो नाम हो गए। जलस्ता बैठने को बोलते हैं ना, जलसा यफ्तबूना लिखने को बोलते हैं। और नाम मैंने ऐसे हमारे अलीगढ़ में जो है वो कोर्सेज होते हैं असर से मखलिस, तो वो क्या है कि कोई भी बच्चा अगर सीखना चाहता हो कुछ अदर डिप्लोमा वगैरह, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, तो उसमें अरबिक मैंने सीखा है, हालांकि बोलने तो नहीं आया, लेकिन हाँ इसमें क्या अक़साम वाले हाथ जिन्स के एतबार से इसमें दो अक़साम है, मुज़क्कर और मुअन्नस, है ना। मुज़क्कर हो इसमें देखिए, उसमें अक़साम कुछ और उर्दू में, तो ये वही कंफ्यूजन ना हो जाए कि बच्चे को साइंस के टीचर पढ़ाते थे कि भाई आदमी तो बना है, वो तो सारा वो बंदर से बना है, हमारे जो बाबू अड्डार थे, बाबा थे, बंदर थे,
और जो इस्लामिक वाले आते थे वो बोलते थे नहीं साहब हमारे बाबा तो बाबा आदम थे। तो ये जो कंफ्यूजन है यहाँ समझना, ठीक है। तो इसमें भी अक़साम का लिहाज जिन्स जो है, जिन्स के अतबार के इसमें दो अक़साम है, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर वो इसमें है जिसमें अलामत तानीस ना हो, जैसे रजल, नासिर, और मुअन्नस वो इसमें है जिसमें अलामत तानीस लफ्ज़ा या तक़दीर हो, जैसे नासिरत, अर्ज़, अलामत तानीस तीन हैं, ताया तानीस, ये सारे जो चीजें हैं, अलिफ मक़सूरा ज़ायद और ममदूदा ज़ायदा, ये सब सारी चीजें जो हैं ये ग्रामेटिकल पोर्शन से है ना, ये आगे पढ़ना है आपको सारी चीजें। इसमें के अक़साम बालिहाज़ अदद कम से कम ये याद रखना होगा कि तादाद के एतबार से इसमें तीन किस्में हैं, एक वाहिद है, एक मुसन्ना है, एक जमा है ना। वाहिद वो इसमें है जो एक पर दलालत करे, जैसे मुस्लिम एक मुसलमान हुआ। और अच्छा उसमें क्या है, उर्दू में तो वाहिद और जमा होगा, यहाँ पे एक चीज तस्निया इसको भी बोलते हैं ना, तस्निया या मुसन्ना दो। तो ये जो है इसमें तीन हो जाती है चीजें, एक बीच का भी हालत है चाहे, ठीक है, जैसे एक मुसलमान और दो मुसलमान, ये एक बात है ना। और फिर उसके बाद जमा है कि मुस्लिमून या रजाल जो भी बोल रहे हो, कि वो इसमें है जो दो से ज्यादा अफराद पर दलालत है, ये अभी होती है साहब। चलिए फेल की बात करें आप, तो फेल की तारीफ, फेल वो कलमा है जो खुद किसी काम पर दलालत करे और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए, जैसे नसब है, नस्र, नसरुन किसे बना है, नसरुन से बना है, नसरुन मीन्स मदद करना, अंसार इसी से बना है, अंसार इसी से बना है। फेल के अक़साम पर एतबार ज़माने की बात करेंगे तो ज़माने के एतबार से फेल की तीन किस्में हैं, माजी, मज़ारा और अमल। पहले माजी, पहले मज़ारा, पहले अमल, ये हैं इसकी अक़साम। और अक़साम फेल बा एतबार निस्बत, निस्बत के एतबार से फेल की दो किस्में हैं, मालूम और मजहूल। बहुत चीजें ज़ाहिर सी बात है कि कुछ याद है और उस ज़माने में जब पढ़ी थी ज़ाहिर से निकल गई है बहुत ज़्यादा। वही है कि अगर हम लोग तो क्लासेस नहीं लेते, अभी क्लासेस तो आती जैसे लोग ओरिएंटल साइड से हैं तो मदारिस से तो आप लोगों को पढ़ाएंगे या असातिज़ा कराम को जानते हैं। उर्दू वाले लोग सोचें कि अरबी पढ़ा लें बहुत मुश्किल, उर्दू तो पढ़ा सकते हैं लेकिन अरबी आसान नहीं, अरबी के लिए तो जब तक नहीं पढ़ने के नहीं समझेंगे तो बहुत मुश्किल है। फेल मजबूत की बात करें तो वो फेल है जिसमें काम करने वाला मालूम ना हो, जैसे पूरा है ना, रिया या पूरा कुरान पढ़ा गया उसमें पढ़ने वाला मालूम। अच्छा तो कोरिया कुरान इस तरह से अरबिक इसलिए भी जरूरी है, इसमें तो असल में वो लिया हुआ नहीं है जबरदस्त, तो हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई अगर हम अरबिक सीखते हैं तो आप के लिए भी हमारे लिए हो सकती है। तो ये चीज है, लेकिन उसमें है कि कुरान समझने में बहुत सारी चीजें अलग, कुरान के अरबी बिल्कुल अलग नहीं। अदब से अगर बात की जाए तो कुरान की अरबी में और इसमें दोनों में वो बहुत आला दर्जे की जो अरबी है वो कही जाए, और जो अदब की अरबी है तो उसमें ऐसी बात। तो ये चीजें हैं आपकी। अब उसमें अस्माउल इशारा है कि लुग़तल अरबिया जो लुग़त, ये सब ये सब सारी चीजें आपको पढ़ना है। इसमें कंप्लीट मुरक्कब और सेंटेंस, नॉमिनल सेंटेंसेस, ओरल सेंटेंस, वर्ब एंड स्टैंस अकॉर्डिंग टू टेंस, प्रेजेंट पास्ट टेंस, फ्यूचर, कंजुगेशन ऑफ पास्ट टेंस एंड इट्स मूड्स। शायद ये सब पढ़ के आए हो आपको, कंजुगेशन ऑफ इंडेफिनिट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस एंड इट्स मूड्स, ट्राइलेटरल प्रीमेटिव वर्ब एंड इट्स पैटर्न्स, ठीक है, ये सब वर्ब हैं। ये माध्य मुजारे और अलम की इस तरह से बताया गया है। तो ये आसान तो नहीं है इसको समझने में, जरा सा ये आपको कि अरबी पढ़ा तो ये मुश्किल नहीं है। जो साइंस वाले हैं उनको तो सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है कि अरबी के पेपर देने होते हैं तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मैं यही कहूँगा कि सीखिए। मैंने क्या कहा कि हम लोग को पढ़ाते थे वो भी बहुत अच्छे थे, फिलोलॉजी डिपार्टमेंट से आते थे पढ़ाने की,
आते तो ये सारी चीजें हैं कि मिल जाते हैं सोच में। लेकिन उसके अलावा जो है हम लोगों ने एक डिप्लोमा कोर्स किया था ताकि इतना हो जाए कि एग्जाम्स में अच्छे से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी और आगे फिर के लिए भी कोशिश करें कुरान वगैरह जो आप जान जाएंगे तो बच्चों को भी बता सकते हैं। ये एक मतलब दो लैंग्वेज है आपका अलग एक्स्ट्रा हो सकता है ना, कि भाई मैं इंग्लिश के अलावा अरबिक भी जानता हूँ और उर्दू भी। Arabic medical words and terms and their uses in sentences, ये चीजें थोड़ा सा कोशिश किया है। यानी इसमें हमारे एक दोस्त हैं वो मदरसा से फारिग हैं, रियाद में ही है मेरे साथ, डॉक्टर रहमान साहब, उन्होंने मदद की है। ये अरबी वाला जो पार्ट है ये जो बड़ी पार्ट थी मालूम थे कि क्या कुछ कहते हैं, जैसे ईयर को क्या कहते हैं, है ना। उस अब देखिए ये सारे पार्ट जो हैं आपको पढ़ने होंगे दिन में। अब अगर कान में दर्द है तो क्या कहेंगे आप, ठीक है। ये उधर स्नान हो गया, लिसान हो गया, वतन हो गया, है ना, बदन हो गया। तो ये चीजें पहले थोड़ी थोड़ी वाइवा में भी पूछी जाती थी और इवन एमडी तक ये पीछा नहीं छोड़ता था। एमडी के एग्जाम्स में खास एनआईयू का जो एग्जाम पेपर होता था, इधर पेपर मैंने देखा नहीं कि कैसा पूछ रहे हैं वो एमडी के लिए, लेकिन जो हमारे जमाने में जो पेपर होते थे उसमें वो उर्दू से ही और इसी तरह से पूछते थे और उसमें अक्सर साइंस वाले लोग तो समझ में नहीं आती थी चीजें, याद नहीं आता था। आइन हो गया, कब हो गया, जेरा हो गया, यद, साफ, इस बाउल, कलम। अब तो बहुत पैटर्न चेंज हो गया जब से एआईपीजीटी ने शुरू किया है। डिजीज नेम देखिए, नेम से अरबी बीमारियों के नाम अभी है। बॉयल को क्या कहेंगे, ठीक है, जो आम लफ्जों में हम लोग कोड़ा बोलते हैं। मलूम है, जुजाम, बरस जो लेप्रोसी को बोलते हैं, बरसून या जुजामन, उसमें तो ऐसे तो आम लफ्ज हम लोग तो पढ़ेंगे यही, जुजाम और बरस, है ना। अल्सर जो है, अरुण है। तो इस तरह से ये चीजें आपको। अब एक पार्ट आपका आती है मंतिक और फलसफा, वो भी आप लोग पढ़ के आओ। मंतिक तो खैर मंतिक है और फलसफा फिलॉसफी को बोलते हैं, है ना। तो उसमें मंतिक का डेफिनेशन है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है कि पढ़ने की जरूरत क्यों है इसको, और इसमें नॉलेज एंड परसेप्शन है, काइंड्स ऑफ नॉलेज, इमेजिनेशन एंड जजमेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन है, डिफाइनर और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एविडेंस और आर्गुमेंट है। मुझे लगता है डॉक्टर को तो मंतिक की बहुत ज्यादा मंतिक लॉजिक को कहते हैं, ज्यादा जरूरत पड़ती है। शायद इसलिए ये हम लोग को शुरू से दिन में पढ़ाई जाती है और आज भी जो है ये एड्रेस डिफाइनर और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, एविडेंस और आर्गुमेंट है, डिनोटेशन, इसमें डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, वर्ड डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन है, और कंसेप्शन पढ़ना है आपको, स्पेसिफिक, पार्टिकुलर एंड जनरल एंड देयर काइंड्स, कोरिलेशंस है। ये एनसिफ में बहुत सारी चीजें पहले जो था, पहले की जो कोर्स थी आपकी थी उसमें और अब में बहुत फर्क हुआ है। बहुत सी चीजों उन्होंने ऐड किया है, बहुत सी चीजें उन्होंने हटाई नहीं। जैसे उर्दू अदब में मैंने देख रहा था, उर्दू में वो चीजें तो थी। तो उसके लिए है कि वो एग्जाम देना है आपको और पास करना है। मंतिक के लफ्ज़ मानी क्या होते हैं, तो अरबी लफ्ज है जो नुतक से बना है ना। नुतक के मानी बोलना और बात करना है। और मंतिक के इस्तिलाही मानी जो होते हैं एक ऐसा ही है जिसकी मदद से इंसान का ज़हन और फिक्र और सोच विचार करते हैं और गलतियों से महफूज रहता है। एक बड़ी अजीब सी बात है, अगर साइंस में आप आगे आएंगे और पढ़ेंगे फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, तो जो इंसान का सोचने का जो तस्वर है और जो काम है, जो फंक्शन है, जो दिमाग का, तो वो जो आपका काम करता है जो कॉर्टिकल एरिया है ब्रेन का, कॉर्टेक्स होंगे, और वो भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, फ्रंटल प्रीफ्रंट, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का ये जो है जो लिम्बिक एरिया है आपका ब्रेन में, उसका ये सोच विचार और सारी चीजें, दो चीजें हैं, एक तो बोलना, एक गुस्से से बोलना, इमोशंस में आके बोलना। तो इमोशन का काम कोई और करता है
और इसका लेकिन बोलने का और सोचने का और जहन का जो काम है, जहानत वाली जो चीज है, इंटेलिजेंस वाली, तो वो चीज जो है ना वो आपका लिम्बिक एरिया करता है। और लिम्बिक में जो प्रोटेक्ट्स है, फीलिंग कंट्रोल प्रोटेक्ट्स, वो पार्ट करता है। और अजीब सी बात है कि हर फिनोमिना जो बॉडी का है वो उसमें किसी एक मतलब जो ब्रेन का एक हिस्सा है उसका एक पार्टिकुलर फंक्शन है, उसका एक काम है, लेकिन ये सोचने वाला काम जो है वो दो जगह से, बोलने वाला जो काम है ये दो जगह से। मेरी कि इमोशनल उसको जब आप आइएगा तो जब एनाटॉमी और फिजियो पढ़िएगा तो उसमें ये बातें समझ आएंगी। खास करके न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, हमारे दोस्त हैं न्यूरो के, उनसे जब डिस्कस हो रहा था तो उन्होंने ये बात बहुत पॉइंट करके बताया था कि यार ये ऐसा है। मेरा काम इसी पे है, जहानत पे, इंटेलिजेंस पे। मुझे सारे मिजाज में जो 4 मिजाज होते हैं, मिजाज के बारे में आप लोगों ने मुझे लगता है रेडिएशन प्रोग्राम इतना हो चुका कि आप जान चुके होंगे कि मिजाज किसे कहते हैं और कितने मिजाज होते हैं। तो उस मिजाज में 4 मिजाज में हमें देखना है कि किन लोगों का इंटेलिजेंस कितना अच्छा होता है, यानी कि कौन लोग ज्यादा सही होंगे। तो उसमें जो है ये बात है। अब मंतिक की गलत की बात करेंगे तो और फिक्र या सोच विचार करते हो जहन को गलती से बचाना। मंतिक एक कदीम साइंस इल्म है जिसमें दुरुस्त नताइज और के उसूलों का मताला किया जाता है। असल में मंतिक वही लॉजिक है ना, आप किस तरह से सोचते हैं, अपने जहन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और ताकि आप जो है कहीं की गलतियों से बच सकते हैं। आप उसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि जैसे तारीफ बहुत अमूमन कही जाती है कि तारीफ अपने आप को दोहराती है। मीन्स क्या मतलब ये है कि जो तारीफ करता है तो जाहिर सी बात है कि हम ह्यूमन बीइंग है, पहले भी जंगें होती थी, आज भी जंगें हो रही थी। पहले भी लोग जो सिविलाइजेशन से वो रहते थे, अपनी जिंदगी गुजारते थे, आज भी लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उसमें जो गलतियां हुई हम उन गलतियों को न करें। पढ़ने का फायदा ये है, विजनरी किसको पढ़ने लिखने का इनका क्या फायदा है कि आप विजनरी होते हैं, आप दूरंदेश होते हैं। दूरंदेश का क्या मतलब हुआ कि आपको ये पता चल जाता है पहले कि क्या होने वाला। जैसे आप एक डॉक्टर हैं, आपको पता है कि ये जॉन्डिस हुआ है अभी, हमें भी ये हेपेटाइटिस में अगर इसे इलाज नहीं किया गया और अगर कुछ और भी इन्फेक्शन वगैरह हो गया, हेपेटाइटिस वगैरह, उसके क्या अंजाम हो सकती है आपको आगे तक क्या है मालूम है ना। तभी तो आप इलाज करते हैं उस हिसाब से। आप क्या करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि पहले ये चीज हो ही ना, है ना, कि भाई इसका बचाव किया जाए पहले कि ये बीमारी ना हो। तो ये सारी चीजें जो है आपको जो आपका जन है, सोच और विचार है, ये सब लॉजिक से जुड़ा है और इसका जरूरी है ये मंतक। ये मंतिक को फलसफा को लोग सिर्फ इसलिए ले लेते हैं कि यार ये कुछ सब्जेक्ट थोड़ी है जी है भाई, इसमें क्या पढ़ना हम लोगों को। बात सही है, डिफिनेशन वगैरह कुछ इस तरह के हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। एक डॉक्टर को तो बहुत, एक आम इंसान को जो मतलब के डिसीजन जो मेकर होता है कि खास उसे वक्त में जब कमजोर लगने होते जिंदगी के, तो उस वक्त वो कैसा डिसीजन लेता है, उसकी कामयाबी और नाकामी उस पर मना सकती है। एक खराब डिसीजन पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है और एक अच्छा डिसीजन पूरी जिंदगी को बना सकता है। तो मंतिक तो साइंस है भाई, पहले तो पढ़ते हैं हम लोग फिलोसफर्स को, चाहे वो सीना हो। अब जैसे जितने भी लोग हैं पहले तो लगता है कि वाकई क्या है इल्म और उसकी तफसील के बारे में बात करेंगे तो किसी चीज की सूरत का जहन में आना इल्म कहलाता है। जैसे किसी ने जैद बोला और जहन की उसकी सूरत आ गई तो जैद का इल्म। इल्म की 2 किस्में हैं। अब इसको जैसे इसमें बताया गया है मंतिक में, यही चीज आपको डिफिनेशन मिलेंगी जब आप पढ़ेंगे उसूल फिक्र, है ना, और उसमें वो चीजें पढ़ेंगे जब आप ये क्या बोलते हैं सारी चीजें के एग्जाम में पहले तो तस्वीर आई और वो सारी चीजें जो सारे हाँ वो होते हैं हादसा वगैरह जो है, तो सारी वो होते हैं जो है वो आपकी सारी आई, ठीक है। तो उसमें किस तरह से वो सब काम करती हैं चारों वो आपको पता चलेगा। इल्म की 2 किस्में हैं। एक तो तस्दीक है, इस बात का इल्म है कि फलां चीज फलां है या फलां चीज फलां नहीं है। जैसे ये जानना है कि ज़ैद उमर का बाप है या ज़ैद उमर का बाप नहीं है,
यानी ये तस्दीक करना है ना, तो ये है तसव्वुर। वो इल्म है जो तस्दीक जैसा ना हो, यानी उसमें हुक्म ना हो जैसे सिर्फ ज़ैद हो जाना। इसमें ऐसे इसको हम टिप से जोड़ सकते हैं तस्दीक को कि मेरी जो रिपोर्ट्स कराते हैं, रिपोर्ट्स तो कराते हैं तो तस्दीक के लिए नहीं करा। हमें लगता है क्लिनिकल के यार इससे जो है टाइफाइड है या इससे अपेंडिसाइटिस है, क्लिनिकल जो है आप वहां तक पहुंचते हैं। एक डॉक्टर तो क्लिनिकल जो है जब ऑब्जर्वेशन करता है तो उसे समझ आ जाता है कि मेरी ये अपेंडिसाइटिस और नॉट, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में उसके बाद क्या करते हैं, आप एक प्लान करते हैं कि भाई इसका एक यूएसटी होना चाहिए ताकि इससे पता चले कि इसे अपेंडिसाइटिस है भी या नहीं है। तो वो तस्दीक के ज़मरे में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। आप डायग्नोसिस को आपके डायग्नोसिस के लिए वो जरूरी है। तसव्वुर इमेजिनेशन को बोलते हैं। तसव्वुर वो इल्म है जो तस्दीक जैसा ना हो, यानी उसमें हुक्म ना हो जैसे सिर्फ ज़ैद हो जाना। इसमें एक चीज खोल दिया जाता है। तसव्वुर और तस्दीक की किस्में हैं। तसव्वुर बदीही ऐसी चीज का जानना जिसकी तारीफ बताने की जरूरत न हो, जैसे आग, पानी, सब्जी वगैरह। तसव्वुर नज़री ऐसी चीज का जानना है जिसकी तारीफ बताने की जरूरत हो, जैसे इस्म, फेल, हर्फ वगैरह। आप तीन में भी पढ़ेंगे तो आपको नजरी है देखे कि आपको देख के समझ में आनी चाहिए उसके सिम्टम से और उसको ऑब्जर्व कर। और एक ये है कि भाई तो अमली है उसमें इलाज करते हैं कैसे, है ना। जहाँ भाई बुखार है तो उसमें एंटीपायरेटिक जो है जो मेडिसिन है दी जाए। तस्दीक की दो किस्में हैं। तस्दीक बदीही वो तस्दीक है जिसके लिए दलील बताने की जरूरत ना हो, दो चार होते हैं। और तस्दीक बदीही वो तस्दीक है जिसके दलील बताने की जरूरत हो। बदीही और गैर बदीही है ना, ये दोनों एक ही लिख दिया है क्या मैंने? हाँ नहीं, तस्दीक बदीही है, गैर बदीही होगा। हाँ नजरी छूट गया है ना। तारीफ, मारिफ और कौल शायर, ये अभी सेशनल हो रहा था तो बच्चों ने ये पूछा गया था। अब कौल शायर के बारे में उनका यार एक जमाना हो गया, 511 में वो और आज हिंदी के लिए आ गए। तो भाई हमें तो कुछ याद ही नहीं, उस जमाने में भी याद मुश्किल से हुआ करता था, ये चीजें याद नहीं करती। तारीफ और मारिफ और कौल शायर कुछ जरा मुश्किल से याद आती है। तो खैर 2 या 2 से ज्यादा मालूम, ये जाहिर सी बात है हम लोग जो पढ़ते थे तो समझने की पर्पज से नहीं पढ़ाया जाता था, इस पर्पज से पढ़ाया जाता था कि यार एग्जाम पास कर देंगे। साइंस वालों का कंसेप्ट तो यही होता है कि भाई ये उर्दू वाला और ये क्वेश्चन है, ये सारी चीजें हैं, ये किसी तरह से बस एग्जाम है पास कर देंगे, ठीक है। तो ये बाद में चीजें समझ में आती है कि किसी इल्म का क्या फायदा है और उसे कैसे फायदा उठाया जाए। तो ये चीजें बाद में समझ में आती है, बहुत पढ़ने के बाद, समझने के बाद नहीं यार ये इस तरह से प्रयोग किया जा सकता था, उसको काम में लाया जा सकता। उसका एप्लीकेशन जो पढ़िए तो उसका एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है उसको थोड़ा ऐड करने की कोशिश की जाए। और इसमें एक चीजें याद रखती थी कि भाई इंसान को जो कहा गया है वो क्या कहा है, सब मखलूकात जो कहा गया है तो हैवान नातिक की बात जो आती है, हैवान जानदार और नातिक तक लेकर है, उसने दोनों को मिलाया तो हैवान नातिक यानी वो जानदार मखलूक जो अक्ल कामिल रखने वाली है, उससे उसके इंसान नामालूम का इल्म हो गया तो ये हैवान नातिक। इंसान की तारीफ ये उसके इंसान को मालूम की करते हैं ना। उसके बाद मंतक और भी है, प्रोपोजिशन क्लॉज एंड इट्स काइंड, कंडीशनल क्लॉज एंड इट्स टू काइंड्स, अटैच्ड एंड डिटैच्ड क्लॉज, कंट्राडिक्शन भी पढ़ना है, 8 यूनिटीज एंड इन्वॉल्व। इसके बाद फलसफा की बात है। फलसफा में आप ये सारी चीजें पढ़नी है, फिलॉसफी, इट्स डेफिनिशन एंड काइंड्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, है ना। फलसफा में ये सारी चीजें एलिमेंट्स, प्लांट्स, कंडीशन एंड फंडामेंट हैं। एनाबॉलिक, मेटाबॉलिक, कंप्लीट, कंपाउंड्स, नंबर्स, है ना। बॉटनिकल बीइंग, एनिमल सोल, ह्यूमन सोल एंड फैकल्टीज वर्किंग अंडर देम। असल में पहले की जो चीज थी ना वो एक्सपेरिमेंटल नहीं थी, एक्सपेरिमेंटल बाद में हुआ धीरे धीरे, तो एक्सपेरिमेंट कम था। फिलॉसफी में ज्यादा जो है
आप देखिएगा कि वो सारी चीजें जो लिखी गई हैं बेसिकली जो भी किताबें हैं, इसलिए मोस्टली जो होते थे फिलोसफर होते थे। और आज भी जो आपकी आइडियोलॉजी जो कहिए या आप जो थिंक कर रहे हैं या जो चीजें आती हैं नई उर्दू में आती हैं, शुरू में तो फिलोसफी का ही नतीजा होती है। आप पहले सोचते हो तब उस पर तजर्बा करते हो ना। आप रिसर्च किस पे करेंगे, पहले एक टॉपिक आप चूज करते हैं कि हमें किस पे करना है काम, उसके बाद आप उस पे काम करते हैं। तो जो टॉपिक आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये तो आप सोचेंगे ना, सोच के ही आपके दिमाग का ये अब जुड़ी गई है ना। तो ये सारी चीजें तारीफ फिर है फलसफा का साथ। मुझे लगता है अब काफी हो गया है, तो मैं ये कर देता हूँ। इल्मियत भी पढ़ना है साथ। कामयाब हकीम होने के लिए अगर हकीम है तो आपको जानना चाहिए कि आसमानों और सितारों के बारे में कि वो क्या बातें करती है। ठीक है, जब रात में चमकते हैं तो क्या कहते हैं और दिन में कहाँ जाते हैं। ठीक है, जो चमकदार हैं वो क्या कह रहे हैं और जो कम चमकदार हैं वो क्या कह रहे हैं, और उनके जो सितारों से पहले जो है लोग डायरेक्शन तलाश किया और वक्त औकात का पता भी उसी से चलता था कि वक्त जो है पुरानी किताबें पढ़े, तारीख की किताबें। इनायतुल्लाह अल्तमिश की किताबें तो मैंने पढ़ी, उसमें सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के दास्तान ईमान फरोशों की और इस तरह की नसीम इलाही की कई किताबें हैं। तो उसमें ये चीजें आपको मिली कि आसमानों से कैसे लोग सितारों से रास्ते तलाश किया करते थे। ये सारी चीजें इल्मियत की इम्पोर्टेंस इसलिए है, मैं अहमियत बता दूं। अरबी की अहमियत तो समझी चुके हैं कि आपकी ज्यादातर किताबें अरबी में हैं, यूनानी आदमी टेक्स्ट जो बुक हैं क्लासिकल, और उर्दू की अहमियत बताई दिया कि तराजी जो है उर्दू में। तो जरूरी है, अगर ये दोनों नहीं जानते और इंग्लिश में भी कुछ है तराजी, लेकिन तराजी ट्रांसलेशन होता है, वो नहीं होता जो असल में। आप किसी भी चीज का ट्रांसलेशन करके देख लीजिए, उसमें बहुत सारी चीजें बदल जाती है। आप एग्जैक्ट जिसको कहा जाए वो नहीं कर सकते, उसकी रूह बाकी नहीं रहती, मजा भी नहीं आता। कुरान को कोई अरबी वाला अगर समझ के पढ़ता हो, जो समझ में आता है, उसमें और हम में बहुत फर्क हो जाता है। चीजें हैं या तालीम है जमाने में जो दी गई थी, तो रियायत की कदीम अपनी रियायत की जदीद बताई गई है। इल्मियत अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा, डॉक्टर केटी अजमल साहब, आप लोगों ने किसी ने सुना है? तालीम करने में प्रैक्टिस करते हैं। मॉडर्न हकीम है, पहले के हकीम और आज के हकीम दोनों को मिला लीजिए तो उनका नाम होगा डॉक्टर केटी अजमल। स्मार्ट पर्सनालिटी कभी यूपी पे देख लीजिए, बहुत सारे लेक्चर्स हैं। वो सब कुछ उनको ये भी है कि भाई आपका कमरा जो बना, ये घर बना, तो घर का दरवाजा किधर होना चाहिए, हकीम बताएगा। समझ में बात है? ये हकीम बताएगा कि भाई आपका किचन किधर होना चाहिए, आपका बेडरूम किधर होना चाहिए, आप जो बदन रोगन कराएंगे किस कलर का होना चाहिए, ये बताएगा सर। और बहुत कामयाब से बातें कर लीजिए किसी टॉपिक पे, तो ये सारे उनको मालूम है। साथ सितारों के बहुत ही स्टडी, पत्थरों के बारे में, तो ये सारी चीजों को मिला के हकीम जो है ना बहुत है ना, इसीलिए हम लोग डॉक्टर नहीं कहते, छोटा बहुत छोटा हकीम। तो हिकमत अब देखिए, हकीम कहते तो कुरान में है ऐसा, तो अब उससे समझ लीजिए हिकमत बहुत बड़ी चीज है, वो किसी को अल्लाह अता करता है, ये आसान नहीं। हाँ, हम लोग पास आउट होने के बाद तभी हो सकते, हकीम होना बहुत ठीक है। ये सब वर्ड्स अलग अलग है ना, तो ये चीज चलिए, ये भी है। कुछ साइकोलॉजी भी पढ़ना है साथ, ताकि इससे क्या फायदा है साइकोलॉजी से, क्यों आप लोगों को ऐड किया गया इंसान को देख करके पता चलता है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है या किस तरह की इंसान कैसे। हाँ, वो क्या कहना चाह रहा है, इसके दिमाग में क्या बता तो छोड़ रहा है, लेकिन ना तो उसका ताल्लुक साइकोलॉजी से है। ये साइकोलॉजी जो टर्म है इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए। ये टर्म साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम द वर्ड साइकी, और ग्रीक फॉर ब्रीथ, स्पिरिट एंड सोल।
और ये तो सोच से जोड़ा है रूप से, है ना, प्लस वो लॉजिक को स्टडी जानते हैं कि स्टडी ऑफ साइंस इट वाज फर्स्ट यूज टू मी स्टडी ऑफ साइंस ऑफ द सोल एंड लेटर स्टडी ऑफ द माइंड। शुरू में जो कहा जाता था कि ये रूप का क्या करता है, मुताला करता है, स्टडी इसमें होता है, लेकिन बाद में पाते हैं कि साहब ये दिमाग की रूप के लिए दिमाग, तो वहां से साइकोलॉजी आया है। चलिए साहब इतने खत्म करना चाह रहा था, एक मिनट क्षमा। ये इमरान काइस कौन कौन जानता है इमरान काइस के बारे में? और क्या था ये इमरान काइस? जमाने फिर इस्लामी के बाद, तो मैंने जैसे उर्दू के कुछ शेर टेस्टिंग बनाने के लिए ये किया, तो ये भी ये मैंने अभी हमारे ज्वाइन किया एसोसिएट प्रोफेसर, ये इसका मतलब उनसे समझा। काइस को जानते हो? मुझे काइस को नहीं जानते, मैं तो असल नाम था। तो कैश जो है कि कैश शेख था ना कि कैश जंगल में आगे अकेला है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी अगर मिल बैठेंगे दीवाने, है ना, ये कैश है। और वो जो लैला की बात आती है वो अब ये शायरी देखिए, इतनी इस्लामी की रागी शायरी है। ये कह रहे हैं कि अमूर अला अला दियारी दियारी लैला, दियार कहते हैं गली को, मुझे है ना, बला जल जल जिदारा वजन जिदार वमा हुब्बु दियारा शगफना कल्बी, और क्या है लकर हुब्बु मन सकन दियार। ये मैं चाह रहा था कि इमरान काइस सोच रहे थे कि श्री इस्लामी किरा की बात नहीं करें, उस जमाने का जो अदब था, तो और जो जबान, वो लोग ये कहते थे कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो बेजुबान हैं, गूंगे हैं, हम ही हैं जो जबान वाले। वो अपने को अरबी कहते थे और दूसरे को अजमी कहते है कि अरब और अजम, अजम का मतलब होता है गोंगा, यही है आप लोग ज्यादा बेहतर से जानते। तो गोंगा कहते थे वो लोग। क्या सलाहियत थी इन लोगों की और क्यों ऐसी बातें करते थे? इनका जो कलाम हुआ करता था ना, वो काबा की दीवारों पे लगा करता था। 6-7 साल में उसमें से इमरान काइस हुए, ये बहुत बड़े शायर थे। इन लोगों ने ये भी कोशिश की कि कुरान का जवाब दिया। जब इस्लाम आया, इस्लाम के बाद जो है इन्ना आतैना तो सबका इस्लाम में जवाब दिया, उसका कोई मतलब नहीं था, उन्होंने खुद लिखा कि इस्लाम तो भी इसमें ये लिखना चाह रहे हैं कि ये जो है अमूर अलग दियारे लैला, कि मैं लैला की गलियों में घूमता रहता, कभी इधर जाता हूँ कभी उधर जाता हूँ, और ये ऐसा मैं इसलिए करता हूँ कि जब लैला मतलब हमारे साथ थी, मेरे साथ थी, तो वो भी यही क्या करते थे, जहां जहां वो जाती थी मैं अक्सर जो है ये काम करता हूँ कि मैं भी यहाँ और वहां जाया करता हूँ। तो कब्बल जिदारा, इसका मतलब ये है कि, और यही नहीं करता मैं, वहां पे जो दीवारें हैं, कभी मैं इस दीवार को छूता हूँ कभी उस दीवार को छूता हूँ। वहां हुब्बु दियारे शगफना कल्बी, ये देखिए ये असल में होती क्या है ना कि जो इश्क और उसकी जो बात है उसमें इंसान जो अधिक है वो मतलब वो जो इसके मजाजी और इसके हकीकी की बात है, उसमें जब तक इश्क जो है आप उसका वर्ड नहीं समझेंगे नहीं जानेंगे तो आप अल्लाह को पहचान नहीं सकते। ये बहुत जरूरी है आपको जानना और समझना कि होता है। असल में क्या है कि अब तो इन चीजों को अलग स्थान दे दिए गए, अलग मानी दे दिए गए, और वो कहिए कि कमजोर ने ऐसा किया, वरना पहले तो देखिए जितने भी बुजुर्ग हुआ करते थे और जैसे लोग हुआ करते थे ज्यादा। अरे यहाँ पे तो दूसरा मतलब है, ये जमाने जाहिलियत की बात है, तो मैं वहां की बात हो रही है। देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, उसमें भी बात की थी, उसमें लिखा कि वामा हुब्बु दियारे शगफना कल्बी वलकन हुब्बु मन सकन दियार। तो हालांकि वो कह रहे हैं कि वहां वो नहीं है, वो चली गई है, मेरे दिल में जो है उसकी यादें हैं, उन गलियों की, उन कूचों की, और
मैं आज भी नदियों और कुटों में क्या है लखन हुकुम और सकना तैयारा मेरी ख्वाहिश रहती है कि मैं उन्हीं गलियों में उसको याद करूँ, जो कुछ वो करके, हाँ वो है, वो जो कुछ चली गई है, लेकिन मैं आज भी उसी गली में रहना चाहता हूँ। ये इमरान सब कुछ सिर्फ इसलिए किया है आप उसके बारे में जाने और समझे कि नहीं। और ये लोग फिर इस्लामिक नॉलेज बनने की चीजें हैं नहीं, लेकिन जो अदब का जो मेयार था उसको समझे। और इनकी किताबें जो हैं अरबी की थियोलॉजी के डिपार्टमेंट्स में पीएचडी से लेकर सबने पढ़ाई कर रही। ठीक है, शुक्रिया। राइट सब्जेक्ट था, पता नहीं कितना अच्छा। बहुत ही उम्दा तफसील बयान की आपने उर्दू, अरबी और मंसूर फलसफा के सिलेबस की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल।